हालेलुया जीसस। सदा प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଏ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଅଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଥିବାରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜିର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। Yes Lord, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନ ତୁମରି ତୁମର ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଯେପରି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ସମସ୍ତ ଉପାସନା ତୁମ ନିକଟରେ ତୁମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। Glory to Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Hallelujah.
महान है प्रभु, तू ही श्रेष्ठ है। आदर महिमा तेरे को देते हैं क्योंकि तूने हमको जीवित रखा। जब तक हम जीवित हैं अपनी आखिरी सांस में प्रभु हम तेरी प्रशंसा करें, तेरी महिमा। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We'll start this Sunday service with a word of prayer. और आज के परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। Heavenly Father, once again we come to the rest in the name of Jesus. और स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन में हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं। We ask the Lord, the Holy Spirit may help us to study the word of God and also enjoy the word of God and receive the word of God and believe the word of God. और हम परमेश्वर के आत्मा से ये मांगते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएं, उसको ग्रहण कर पाएं, उसके ऊपर भरोसा कर पाएं। So help us to see the mysteries from the word of God. और हमें मदद कर ताकि हम वो दृढ़ तत्व को समझ पाएं। In the name of Jesus, we have this prayer. और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Once again I greet you all in the name of Jesus. और फिर से मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। Last Sunday we saw the church and its edification. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि चर्च, कलीसिया और उसकी उन्नति। Church as a bride for Christ. और चर्च जो परमेश्वर का दुल्हन है। Today we'll see church as a building of God. और आज हम देखेंगे कलीसिया परमेश्वर का घर है, निवास स्थान है। We see from the scripture Ephesians chapter 2 verse 20 to 22. और आज जो इस वचन को हम देखेंगे वो इफिसियों का किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 20 से लेकर 22 आयत तक। और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। God bless this scripture portion. और परमेश्वर इस शास्त्रांश से आशीष दे। Church is the building of God. और जो कलीसिया है वो परमेश्वर का निवास स्थान है। Saint Paul says you are built by the foundation of apostles. और पौलुस ऐसा कहता है कि आपको प्रेरितों के नींव से बनाया गया है। So apostles have gone away, passed away. और They are dead and gone. वो लोग मर गए और वो लोग चले गए, But their doctrine, their teachings are available in the scripture. लेकिन उनके जो वचन है, जो सिद्धांत है, वो आज भी हमारे पास है। We are build the house of God, the building of God, the church, on the foundation of apostolic doctrine. और जिस कलीसिया, जिस निवास स्थान को बनाया जाता है वो प्रेरितों के सिद्धांत के ऊपर बनाया जाता So है। Jesus is the master builder of the church. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह वो है जो इसके बनाने वाला है। We can find in Matthew chapter 16 verse 18. और इस वचन को हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 16 का 18 में पा सकते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। This is the rock upon which Christ is building his church. और यही वो पत्थर है जिसके ऊपर यीशु मसीह खुद का कलीसिया बनाया था। Because God's spirit doesn't dwell in man-made buildings. क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो मनुष्य बनाए निवास स्थान में कभी नहीं रहता। Generally, we understand church means the hall or the worshiping building made by bricks and stones. और साधारण तौर से हम समझते हैं कि कलीसिया का अर्थ ये होता है कि जो मनुष्य बनाया होता है, जो ईंट पत्थर से बनाया होता है, उसको सोचते हैं। But you see, God is not dwelling in man-made bricks and stones building. और लेकिन हमको ये मालूम है कि परमेश्वर वहाँ पे नहीं रहता जहाँ पे मनुष्य पत्थर और
पत्थर और ईंट से जो घर बनाया है, But the Spirit of God abides in the church built by Himself. और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने खुद बनाया है वहां रहता है। That is why St. Paul says, "Don't you know that you are the temple of God?" और इसीलिए संत पौलुस ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तू परमेश्वर का मंदिर है। So 1 Corinthians chapter 3 verse 9 says, और पहला कुरिन्थियन उसका 3:9 आयत ऐसी कहती है, "You are the temple of the Holy Ghost." और आप खुद पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो, We are the building of God. और हम परमेश्वर का निवास स्थान है। So our body is the temple of the Holy Ghost. और हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का घर है। When we come together to worship the Lord as a church, और जब हम एक कलीसिया होकर एक जगह इकट्ठा होते हैं और आराधना करते we हैं, are framed as a building of God. और हम परमेश्वर के मंदिर के जैसे बन जाते हैं। So we can see in Acts chapter 2 और 41 and 47. और अगर हम प्रेरित का 2 अध्याय उसका 41 और 47 आयत को देखते हैं, अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। 47 और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाए थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। So here Dr. Luke says how the church is being built or grow. और यहाँ पे डॉक्टर लुक ऐसा कहता है कि कैसे चर्च बनाएगा और कैसे चर्च वृद्धि हुई। In him all the buildings are fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. और उनमें उस पवित्र मंदिर बनाया गया। So we must join together, fitly join together to build a house of God. और इसीलिए हमें एक साथ इकट्ठा होना है ताकि हम परमेश्वर के उस मंदिर को बना सकें। So when we come to the fellowship and the worship, और जब हम संगति में आते हैं और बैठते हैं, that is the house of God where Spirit of God dwells. और वही जगह परमेश्वर का घर होता है जहाँ पवित्र आत्मा वास करता है। So you can see Revelation chapter 21 verse 14. अगर हम प्रकाशन का 21 अध्याय उसका 14 आयत को देखते हैं, You see this foundation stones upon which the church is being built. और यहाँ पे हम उस पत्थर को देखते हैं जिस पत्थर के ऊपर परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाया। नगर की शहर पनाह की 12 नींव थी और उन पर मेमने का 12 प्रेरित के 12 नाम लिखे थे। So this is the New Jerusalem, the city of Jerusalem. और ये नए यरूशलेम या नगर के बारे में कहता है, Which represent the church of God. और जो प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर के कलीसिया का। The wall around the city. और ये पूरे नगर में है। That city is surrounded by the wall. और वो जो प्राचीर है वो प्राचीर पूरे शहर को रखा है। So on the foundation stones of this wall, 12 disciples' names are written. और उस नीम के वो प्राचीर में 12 चेलों का नाम लिखा हुआ है। So these disciples have gone to heaven, और ये जो चेले थे वो स्वर्ग में गए, but they have left their teachings, the doctrine of apostles on the surface of the earth. और अगर वो लोग मर के चले गए स्वर्ग में, लेकिन वो लोग ये परमेश्वर के जो वचन है वो छोड़ के गए हैं इस धरती में। So what are the teachings of the apostles? और प्रेरितों का जो शिक्षा था वो शिक्षा क्या था? That is called the teachings of Christ Jesus. और वो शिक्षा परमेश्वर यीशु मसीह का शिक्षा था। Matthew chapter 28 we see Jesus Christ commanded his disciples to teach what they have listened from him. और मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में ये परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा कि जो वो लोगों ने सुना है वो सारे चीज दूसरों को बताएं। So this is nothing but Christ's teaching. ये कुछ नहीं है लेकिन ये मसीहा का शिक्षा है। So this is called Christology. और इसको क्रिस्टोलॉजी मसीहियत कहा जाता है। So Saint Paul is reminding the messengers or the builders of the church. और यहाँ पे
पौलुस ये याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर के जो वार्तावाहक थे, So be careful how you're building this church. और वो सलाह और यत्न पूर्वक ये कहता था कि कैसे आप परमेश्वर के कलीसिया को बना रहे हो। So you must build the faith of the believers according to the doctrine of the apostles. और प्रेरितों के सिद्धांत के अनुसार आपको उस विश्वास को बनाना होगा। So you might have seen how these walls are just built upon the foundations. और आप शायद देखे होंगे कि उस नीम के ऊपर कैसे वो दीवार बनाया जाता है। The mason or the laborers, they just tape, they measure these walls. और आप देखे होंगे कि जो लोग काम करते हैं वो लोग उस दीवार को वो मेजर नापने वाले धागा से वो नापते हैं। If they miss the leveling, then the wall may crack. अगर वो लोग कुछ गलत कर दिए तो वो दीवार टूट सकता है। So this wall must match to the foundation stones. और इसीलिए उस दीवार को उस नीम के साथ ठीक से जुड़ना है। Paul says Jesus Christ himself is the cornerstone of the church. और पौलुस ये कहता है कि यीशु मसीह खुद उस कोने का पत्थर था। So we the builders of this church should be careful. और जो हम कलीसिया के बनाने वाले हैं हमें अपना ख्याल रखना होगा। We should not differ from the Christ teaching. और हम मसीही की शिक्षा से हम ना गिरना चाहिए। We must very carefully listen to his voice and his teachings. और हमें यत्न पूर्वक उसके शिक्षाओं को, उसके आवाज को सुनना है। We should not be deviated from the original teachings of the Lord. और हमें परमेश्वर की उस सच्चाई और वो सच शिक्षा से गलत रास्ते में जाना नहीं है। Or the believers will be driven out by the false doctrines. अगर हम खुद उस सच्ची शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो विश्वासी हैं वो भी उस गलत शिक्षाओं में गिर जाएंगे। That's why you must be careful dealing with the building of God. और इसीलिए हमें यत्न पूर्वक परमेश्वर के जो निवास स्थान को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें यत्न पूर्वक रहना So होगा। when we worship the Lord in spirit and truth, और जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं the Spirit of God just form us or frame us according to His image and likeness. और परमेश्वर की जो आत्मा है और जो सच्चाई है वो परमेश्वर के आकार में हमें बनाता है। Because God is holy, His temple or building of God also to be holy. और परमेश्वर पवित्र है और उसके जो मंदिर है, उसका जो निवास स्थान है वो भी पवित्र होनी चाहिए। No city, no town is holy. कोई शहर, कोई जो जगह बस्ती वो भी पवित्र नहीं है। So many people they call some certain particular city as a holy city. और बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि एक निर्दिष्ट जगह जो है वो पवित्र नगर है। We know this earth is cursed by God. और हमें मालूम है कि ये जो संसार है ये परमेश्वर के द्वारा अभिशप्त है। So we cannot call any city, any town as a holy town, holy city. और हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये शहर, ये बस्ती, ये नगर पवित्र है। Only the Holy Spirit abides in any city, any citizens, then cannot call holy. और अगर पवित्र आत्मा कहीं नगर में या किसी के जगह जीवन में है तो हम उसको पवित्र नहीं कह सकते। So you must teach the holiness of God. और हमें परमेश्वर की उस पवित्रता के बारे में शिक्षा देना है। Because God demands, I am holy, be holy. और परमेश्वर ये दावे करता है कि मैं पवित्र हूँ और तुमको भी पवित्र बनना है। His Holy Spirit is holy. उसका जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र है। His word of God is holy. और उसके जो वचन है वो भी पवित्र है। That's why the Bible says Holy Bible. और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ये पवित्र बाइबल है। But this holy word of God should be come to my heart to make myself holy, and my church can be also holy. और ये जो पवित्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल मेरे हृदय में आए और ये मुझे पवित्र करे ताकि मैं अपनी कलीसिया को पवित्र कर सकूं। Praise the Lord. हालेलुया। So we worship the holy God. और इसीलिए हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते Our हैं। thirst and
talks should be holy. और हमारे जो विचार हैं, हमारे जो बात हैं वो पवित्र होनी चाहिए। Our looks, our imaginations should be holy. और हमारे जो कल्पनाएं हैं, हमारे जो देखने का तरीका है वो भी पवित्र होनी चाहिए। James chapter 9 verse 13 and 14 says, और याकूब क्या उसका 9 का 13 और 14 पद ये कहता है, should the blood of the lamb and sanctify us, makes us holy. और पर जो मेमने का जो खून है वो हमें पवित्रीकरण कर सकता है। That's why we say holy is holy, holy. और इसीलिए हम कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। When the Revelation will see the heaven, they shout holy, holy and holy. और जब हम प्रकाशन में देखते हैं तो वो दूत लोग ये कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र। So even me, the building of God, और आप और मैं परमेश्वर के निवास स्थान है। this building should be holy building, और ये जो निवास स्थान है ये पवित्र होनी चाहिए। not made by bricks and stones. और ये कभी भी वो पत्थर और ईंट से बनाया नहीं जाएगा, It is built by the Holy Spirit. लेकिन इसको पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जाएगा। It is made holy by the holy blood of Jesus. और ये पवित्र परमेश्वर के पवित्र लहू से पवित्र किया गया है। The building is cleansed by the blood of Jesus. और ये जो निवास स्थान है पवित्र परमेश्वर के लहू से पवित्र किया गया The है। building is washed by the holy word of God. और ये जो निवास स्थान है परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा पवित्र किया गया है। Then the Holy Spirit comes and abides and stays in the dwell in this holy building of God. और इसके बाद परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है उस पवित्र निवास स्थान में आके वास करेगा। So it is a challenge for the believers to become holy. और ये सारे विश्वासियों के लिए एक चुनौती है कि वो लोग पवित्र बने। Paul says no evil word should come out of the mouth of the believers. और पौलुस ये कहता है कि एक विश्वासी के मुख से कभी भी कोई गंदे बात नहीं आनी चाहिए, Because mouth speaks out of the abundance of heart. क्योंकि जो हृदय में होती है वो मुख से प्रकट होती है। If the evil thoughts in the heart, it comes out of our mouth. अगर हमारे हृदय में अगर गंदे विचार हैं तो ये मुख से प्रकट होती है। So we must be holy in our heart. और इसीलिए हमें अपने हृदय से पवित्र होना Then चाहिए। we can make the holy building of God, the Holy Spirit may abide and dwell in the building. और तब जाकर हम उस निवास स्थान को पवित्र कर सकते हैं और उस पवित्र निवास स्थान में पवित्र आत्मा आके वास कर सकता है। So we'll pray again that Lord may abide in this building of God at the church. और आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा इस निवास स्थान में आए और इस पवित्र आत्मा उस निवास स्थान को बनाए। Heavenly Father, once again we come to the throne of grace. और पवित्र परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, हम फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं We ask in the name of Jesus और हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं that we may build our holy faith upon the rock of Jesus Christ. ताकि हम अपने जो विश्वास है, पवित्र विश्वास को उस पत्थर में बनाए सकें। Lord, teach us the holy word that we may teach others to make a building of God. परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र वचन से हमें तू शिक्षा दे, तेरे पवित्र वचन, ताकि हम दूसरों को तेरे पवित्र वचन बता के उनको तेरे लिए निवास स्थान बनाएं। Build your church as a master builder. और आपके निवास स्थान को एक गुरु के जैसे आप अपने निवास स्थान को बनाएं। Because you have promised that the power of hell cannot prevail on this church which is the building of God. क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो सामर्थ है, जो नर्क का सामर्थ है, तेरे कलीसिया के ऊपर जयलाभ नहीं कर सकता। In the name of Jesus, by this Spirit. यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Praise the Lord. आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो।